Good morning, children. Today we will learn about the oxygen family. Group 16 of the periodic table is called as oxygen family because this group is headed by oxygen and other members are sulfur, selenium, tellurium and polonium. The member of this group is also called as chalcogen. Chalcogen means ore forming elements. As we know that metal generally exists in the earth crust as oxides and sulfides, and oxides and sulfides are the compound of metal with oxygen and sulfur belonging to this group, so that's why they are called as chalcogens. If we see the abundance, then oxygen is found in air up to 20.46% by volume, and in the form of ozone in stratosphere. 46% of the earth crust consists of the clay silicates, which are the compounds of silicon with oxygen. Now sulfur is 16th element in the earth crust. It is very less abundant, 0.03 to 0.1% in the earth crust, and sulfur exists basically in the form of sulfides and sulfates. Sulfides as galena, cinnabar, zinc blende, and in the form of sulfate as gypsum salt, Epsom salt, and it is also found in the form of H2S in natural gas. Selenium and tellurium, they are very less abundant in the earth crust. They are found as their compound with the metal along with the sulfides. Polonium is very less abundant, 0.001 ppm in earth crust. Polonium is found at the place where radioactive elements are decaying. Now, as we know, the properties of any element depends upon its electronic configuration. So, electronic configuration of this group in general is NH2NP4, where the valence shell contains 6 electrons, out of which 2 are present in s orbital and 4 electrons in the p orbitals. The atomic number of oxygen 8, sulfur 16, selenium 34, tellurium 52 and polonium 84. Their electronic configuration can be written as oxygen, helium for 2 electrons and then 2s2, 2p4. Similarly for sulfur, neon for 10 electrons and 3s2, 3p4. Similarly here 3d10, 4s2, 4p4, 4d10, 5s2, 5p4, and here 4f14, 5d10, 6s2, 6p4. In first two elements, the core is completely filled, but in remaining elements, the core consists of electrons filled in d orbital and f orbital, and the shielding effect by d and f is poor, so it has influence on the atomic radius as well as on other properties like ionization enthalpy. So we will discuss when it will come later on. Now we will take the second property, atomic and ionic radii. As we know, the atomic radius determined in case of oxygen family is covalent radius and ionic radius, and the covalent radii of 16th group element is smaller than 15th group, क्योंकि 16th ग्रुप में जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा होगा. डाउन ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस एंड शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन ग्रुप. नाउ इफ यू सी द आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो एज पर देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4, so they have 4 electrons, so it means this paired electron can be removed easily, so their first ionization enthalpy is lesser than second ionization enthalpy, क्योंकि second ionization enthalpy में इलेक्ट्रॉन को हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालना पड़ेगा जो कि स्टेबल हो जाता है. After losing the first electron, the electronic configuration becomes stable.
पहले ऐसे था, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो जाएगा तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नाउ वी नो दैट हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, सो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अगर हम 16 ग्रुप का 15 ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 15 ग्रुप की ज्यादा होगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होता है, इसका एक ऑर्बिटल में पेयरिंग हुई है। लेकिन अगर हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो ऑक्सीजन फैमिली है इसमें यहां से हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, तो दैट रिक्वायर्स मोर एनर्जी बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन फैमिली की ज्यादा होगी। डाउन ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। इसके कारण आप जान रहे हैं, इसके दो कारण हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ती है, साइज बढ़ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन इट मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो उसका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से वो कम हो जाएगा एंड दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजिली। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड when any isolated neutral gaseous atom accepts an electron in its outermost shell to form anion. So this released energy is the measurement of that attraction which is felt by that incoming electron that is established in the last shell of the atom which is accepting the electron. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम है, जबकि सबसे ज्यादा होना चाहिए। फिर सल्फर का है, उसके बाद फिर डिक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम इसलिए है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड सेल में एक्सेप्ट होना है, और सेकंड सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑलरेडी है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है उनसे रिपल्सन फील करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा और जो रिलीज्ड एनर्जी है वो कम हो जाएगी। सो ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन ऑक्सीजन, incoming electron in 2p subcell feel repulsion and not accepted easily. So that's why its electron gain enthalpy is least in the group. Now, if we talk about electronegativity, as you know, it is the tendency of any atom in bonded state to attract the shared pair of electron towards itself. तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है 15th ग्रुप से, क्योंकि साइज छोटी होती है, और डाउन ग्रुप जाने पर ये डिक्रीज करते हैं। नाउ इफ वी टेक द मेटेलिक करेक्टर एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर, एज यू नो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए दे हैव मोस्टली नॉन मेटेलिक करेक्टर। लेकिन डाउन ग्रुप जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर कम होता है और मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। ऑक्सीजन एंड सल्फर, these two are non-metals. Selenium and tellurium possess metalloid character and polonium is radioactive metal, and it has very short half-life of 13.8 days. So this shows that the nucleus of this polonium is highly unstable. अगर हम नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑक्सीजन जैसा आप जानते हैं कि ये डायटोमिक गैस है, बाकी सभी ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, तो इनमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन की देख रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लेकिन पोलोनियम पर जो मेल्टिंग पॉइंट है ये टेल्यूरियम से कम हो गया। दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि पोलोनियम के केस में जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट लगातार डाउन ग्रुप जाने पर लगातार इंक्रीज करता है, और यहां पर हम वही ट्रेंड देख रहे हैं कि यहां पर थोड़ी सी कम है वैल्यू। दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट।
एलिमेंटल स्टेट की बात करें बच्चों तो ऑक्सीजन एक्सेस इन डायटोमिक फॉर्म इन गैसियस स्टेट, इसका कारण है पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होने की वजह से ऑक्सीजन का ऑक्टेट O2 में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन चूंकि अदर मेंबर्स जैसे सल्फर है वो मल्टीपल बॉन्डिंग कर नहीं सकता है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से हर सल्फर एटम 2 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से अपना ऑक्टेट पूरा करने के अटेम्प्ट में सल्फर मॉलिक्यूल ऑक्टा एटॉमिक हो जाता है, और जो ऑक्टा एटॉमिक का स्ट्रक्चर है वो क्राउन शेप होगा, पकड़ रिंग फॉर्म ले लेता है in order to avoid the repulsion between the lone pair on adjacent atoms of the sulfur in पकड़ रिंग फॉर्म। सल्फर O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है बट एसेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेलेनियम एसेट Fe8 के फॉर्म में, टेल्यूरियम Fe8 के फॉर्म में, ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका कारण है कि सल्फर में पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं होती है, तो इसको 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ऐसा करने पर ये पकड़ रिंग फॉर्म एक्वायर कर लेता है। बच्चों इसके बाद अगर हम देखें पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन के साथ ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। सो ऑक्सीजन कैन मेक पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इट्स ओन एटम, विद कार्बन एटम एंड नाइट्रोजन ऑल्सो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर के केस में अगर आप देखें तो सल्फर के केस में भी कंपाउंड्स बनते हैं जहां पर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड में यहाँ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है। तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो पी पाई बॉन्डिंग से थोड़ा वीक होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होता है वो थोड़ा कम होता है। डाउन ग्रुप जाने पर सेलेनियम में भी है, लेकिन पी पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, कैटेनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट, जिसमें एटम दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हुए जुड़ता चला जाता है और चेन, साइक्लिक और ब्रांच कंपाउंड बनाता है, इसको कैटेनेशन कहते हैं। तो जनरली होता यह है कि जो फर्स्ट मेंबर है उसमें कैटेनेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, ड्यू टू स्मॉलर साइज बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की कैटेनेशन टेंडेंसी कम है, सल्फर की कैटेनेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसका कारण है कि जो सल्फर सिंगल बॉन्ड है ये स्ट्रांग होता है, 213 किलोजूल पर मोल का होता है, जबकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ये वीक होता है, 138 किलोजूल पर मोल का होता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा एटम को होल्ड नहीं कर सकता चेन में। अब बात यह है कि ऑक्सीजन की जो सिंगल बॉन्ड है वो क्यों वीक है, व्हाट इज द रीजन कि वो बॉन्ड वीक क्यों हो रहा है। तो उसका कारण ये है कि ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसके लोन पेयर, चूंकि साइज छोटी है, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन एटम पर ये बहुत क्लोज होते हैं, तो ये एक्चुअली रिपल करते हैं, जिसको हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बोलते हैं। सो ड्यू टू स्मॉल साइज देयर इज inter-electronic repulsion. So this inter-electronic repulsion loosens this oxygen single bond, इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है और इसकी कैटेनेशन टेंडेंसी भी सल्फर से कम हो जाती है। अब बच्चों अगर हम एलोट्रॉपी की बात करें, एलोट्रॉपी जैसा आप जानते हैं कि एलोट्रॉपी का मतलब होता है कि जब कोई एलिमेंट सेवरल फिजिकल मॉडिफिकेशंस में एग्जिस्ट करे, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हो डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी एक ही हो, तो उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोला जाता है। तो ऑक्सीजन में अगर आप देखें तो O2 और O3 है, सल्फर में देखें तो इसके जो मेन फॉर्म्स हैं वो सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लाइनिक है, जबकि सल्फर रोम्बिक हम जानते हैं दिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। और सेलेनियम में अगर देखें तो इसमें 8 एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है, जहां पर ग्रे सेलेनियम ये थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है। टेल्यूरियम में देखें एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। पोलोनियम एग्जिस्ट इन 2 मेटेलिक फॉर्म, जिसमें अल्फा पोलोनियम है, इसका स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है, और बीटा पोलोनियम है जो रोम्बोहेड्रल होता है। तो इस तरह से बच्चों ये इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। अगर हम लेट्स सी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली, तो सबसे पहले बात आती है कि जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एटम के साथ
कॉम्बिनेशन करता है तो वो कुछ चार्ज एक्वायर करता है जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सीजन फैमिली। तो चूंकि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका बैलेंस सेल का NH2NP4 है, सो दे कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर बैलेंस सेल। तो जरूरत है 2 और इलेक्ट्रॉन की ताकि ये ऑक्टेट पूरा कर सकें। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो ये गेन करेंगे या शेयर करेंगे। ऑक्सीजन जो कि स्मॉलर साइज है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाता है और ये ऑक्साइड आयन बनाता है और आयनिक कंपाउंड्स बनाता है। ऑल्दो इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड आल्सो in the oxidation state of -2. Oxygen also exhibit oxidation state of -1 in peroxides, क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्ड होता है पेरोक्साइड में, और फ्लोराइड्स में although they are highly unstable, ऑक्सीजन exhibit positive oxidation state। लेकिन जो टेंडेंसी है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो जैसे जैसे आप डाउन ग्रुप जाओगे वैसे वैसे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी कम होती जाएगी एंड एलिमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर आप सल्फर और सेलेनियम में आगे देखें, सो दे एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, +4, +6 एंड दिस इज ओनली ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन देम। सो इफ यू सी इन केस ऑफ सल्फर ग्राउंड स्टेट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s2, 3p4 और 3d ये थर्ड शेल में है बट इट इज एम्प्टी। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से, अब इस कंडीशन में अगर ये बॉन्डिंग करता है तो क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, सल्फाइड आयन बना सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ये -2 के साथ +2 भी एग्जिबिट कर सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाए यहां से, तो अब हम देख रहे हैं 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। नाउ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा। और जब ये भी अनपेयर हो जाए, हालांकि इसकी अनपेयरिंग डाउन ग्रुप जाने पर कम हो जाता है, सल्फर में ये होता है और यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है, तो ये अनपेयर होकर के यहाँ प्रमोट होता है। तो अब 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। However, due to inert pair effect, the stability of +6 oxidation state decreases down group। और उसका कारण यह है कि डाउन ग्रुप जाने पर s इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग करके प्रमोट करना, ये थोड़ा ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जो कि इसको कंपेंसेट कर पाए। सो दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कंपाउंड्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनके लिए दोनों चांसेस हैं 4 वाले के लिए कि वो +2 पर भी आ सकते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और +6 को भी जा सकते हैं तब वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। लेकिन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड की एक ही टेंडेंसी है कि वो खुद को रिड्यूस कर सकता है। तो जब खुद को रिड्यूस करेगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। नाउ अगर कोवेलेंसी की बात करें तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 है और अदर मेंबर्स जो हैं वो कोवेलेंसी 4 और 6 एग्जिबिट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होती है। इफ यू सी द रिएक्टिविटी चिल्ड्रन, सो ऑक्सीजन इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट, और जैसे जैसे डाउन ग्रुप जाएंगे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाती है। नाउ इफ यू सी द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, so they all react with hydrogen to form hydride of formula H2E, where E is the member of oxygen family like oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium। एक जनरल मेथड है कि अगर हम इनके मेटल के साथ कंपाउंड ले लें, उस पर डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन कराएं तो हम उनके हाइड्राइड्स को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आयरन सल्फाइड reacts with dilute H2SO4, it gives H2S and FeSO4। This is the reaction that takes place in किप्स apparatus। जब हमें लैब में H2S की जरूरत होती है बच्चों, तो हम इसी किप्स